Hello, students. We were reading My Beloved Charioteer together, and we have been well introduced to the characters here. Aarti, her mother, and her daughter. These are the three women in this house who are actually living together and kind of discovering themselves. Aarti's mother is believing that Preeti's affection is kind of a godsend from heaven, and this is what we see her talking about. And she says, I don't fool myself. Her daughter doesn't love her. Aarti, her daughter, was always in love with her father, and he left, he died. The mother lived, she's not attached to the mother. Again, destiny hit her hard by taking her husband away, whom she loved to distraction. The child stayed. Preeti is that child. So she seems to have no affection for the child. She's just about doing her duty by her. Now, here the mother, a widow, and the daughter, again a widow. There is a kind of comparison going along in the story. Let's read this. I know I'm fooling myself. I have no courage to speak. I'm only a foolish middle-aged woman who has never known how to win anyone's love. Now this mother still doubts herself. She has been very insecure throughout her life, and even now she believes that she does not deserve anybody's love, and that is, she doesn't know how to win anyone's love. The husband didn't love her. That will be exposed a little later in the story. The daughter seems to have no love lost for her mother. It's only the child who loves the grandmother to distraction. And she feels that Preeti's affection, that is a gift from heaven, the ray of sunshine God sends even to the darkest corners. So she believes that Preeti is her ray of sunshine. Preeti आशा की या सूरज की वो किरण है जो अंधेरे से अंधेरे कोने तक भी पहुंच जाती है. Now for Aarti, it was always her father. हमेशा ही है ना. Even now, she spends the whole afternoon prowling in what was his room. अभी भी वो पूरी दोपहरी उसी कमरे में घूमती फिरती रहती है जहाँ पर वो जो उसके पिता का कमरा था. It is 7 years since he died, but the room is unchanged. 7 साल हो गए उसे मरे, लेकिन कमरा आज भी वैसे का वैसा है. I have kept everything as it was. मैंने सब कुछ वैसे ही रख रखा है. I dust and sweep it meticulously myself, but strangely, in spite of this, it has a neglected look, like Preeti has at times. मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ, उस कमरे को खुद ही साफ़ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, बहुत मेहनत से करती हूँ, लेकिन फिर भी वो हमेशा ऐसे लगता है जैसे उसको किसी ने नेगलेक्ट कर रखा है, यानी जैसे उसका कोई ध्यान ना रखता हो. बिल्कुल वही लुक उसे प्रीति में भी कभी कभी दिखता है. Preeti is well fed and well dressed. She has her tonics and vitamins and all the other things they give children these days. And yet, a neglected child peeps out of her eyes sometimes, filling me with sadness. प्रीति जो है आरती की बिटिया, वो भी वेल फेड है. उसे अच्छा खाने को मिलता है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, प्रॉपर टॉनिक विटामिन जो कुछ भी आजकल के बच्चों को दिए जाते हैं वो सब उसे मिल रहा है. लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो हमेशा उसकी आँखों में से एक नेगलेक्टेड बच्चा झांकता सा प्रतीत होता है. और जब वो आँखों में उसके ऐसा देखती है तो दादी को, इस नानी को भी बहुत दुख होता है. शी इज़ फिल्ड विद सैडनेस. नाउ आई कैन हियर आरती मूविंग इन हिज रूम. अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि आरती अपने पिता के कमरे में घूम रही है. इवन आफ्टर हिज डेथ ही कैन गिव हर समथिंग आई कांट. मरने के बाद भी शायद वो पिता उसे कुछ ऐसा दे पा रहा है जो मैं नहीं दे पाती. द थॉट हर्ट्स. और ये विचार ही दुख देने वाला है. हर्ट्स, इट्स लाइक हैविंग सॉल्ट रब्ड इनटू अ रॉ वुंड. और दुख ही नहीं, वो तो इतना ज़्यादा कष्ट दे रहा है जैसे किसी ताज़े घाव में नमक मल दिया हो किसी ने. सडनली इट इज़ अनबेरेबल एंड आई गो एंड ओपन द डोर ऑफ हिज रूम. अचानक ऐसा लगता है कभी कभी कि दर्द की इंतहा हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता. वो उठी और जाकर उसने अपने पति के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया.
शी इज़ सिटिंग ऑन हिज चेयर, हर फीट ऑन द टेबल, स्मोकिंग एंड स्टेयरिंग एट नथिंग. देखा तो बेटी पिता की कुर्सी पर बैठी है, टेबल पर पैर रख रखे हैं और वो स्मोक कर रही है और देख रही है शून्य में कहीं. Her feet are the feet of a young woman, but I see with a sense of shock that her face is that of an old woman. पैरों पे नज़र पड़ी तो पैर कैसे हैं? पैर एक जवान औरत के हैं, लेकिन उसने जब नज़रें उठा के चेहरे की ओर देखा तो उसे शौक लगा, क्योंकि चेहरा एक बूढ़ी औरत का सा दिखा उसे. She hears me and turns around, startled, the movement knocking down his photograph which stands on the table. वो मुझे आवाज़ से वो एकदम मुड़ी और चौंक गई, और चौंकने में जो अचानक से जो मूवमेंट हुई उसमें फ़ोटोग्राफ जो टेबल पर रखा था वो नीचे गिर गया. इट लाइज ऑन द फ्लोर फेस डाउन एंड व्हेन शी पिक्स इट अप वी सी दैट द ग्लास हैज़ क्रैक्ड. फ़ोटोग्राफ कांच की तरफ से नीचे गिरा तो फेस डाउन गिरा, तो जब बिटिया ने उसे उठाया तो देखा कि ग्लास जो है वो क्रैक हो गई. लॉन्ग स्प्लिंटर्स ऑफ ग्लास लाई ऑन द फ्लोर. लंबे लंबे कांच की कतरनें सी ज़मीन पर पड़ी हैं. द फोटोग्राफ सीम समहाउ नेकेड एंड पैथेटिक. और फोटोग्राफ ऐसे जैसे नग्न हो गया हो, जैसे उसके आवरण उतर गए हों, और पैथेटिक दयनीय सा लगा. शी लुक्स अप एट मी, समथिंग शोइंग थ्रू द डिलिबरेट ब्लैंकनेस. और वो नज़रें उठा के उसने माँ की तरफ देखा, जैसे कुछ उसके ब्लैंक लुक में भी कुछ दिख रहा है. आई एम सॉरी मदर, आई एम सॉरी. और वो माफ़ी मांगने लगी अपनी माँ से, मैं माफ़ कर दो मुझे. आई स्टेयर डाउन एट द फोटोग्राफ एंड से नथिंग. और माँ जो है उस फोटो को देखती रही, उसने कुछ नहीं कहा. आई एम सॉरी, शी रिपीट्स, डोंट लुक लाइक दैट. शी पासेस हर हैंड ओवर द फोटोग्राफ, अनकेयरिंग द बिट्स ऑफ ग्लास. आई विल गेट इट फिक्स टुमारो, आई प्रॉमिस आई विल डू इट. और बेटी को शायद ये एहसास हो रहा है कि पिता की फ़ोटोग्राफ के कांच के टूट जाने से माँ शायद बहुत दुखी होगी, नाराज़ होगी, इसलिए वो बार बार माफ़ी मांग रही है. ऐसे मत देखो. उसे लग रहा है माँ अचानक शौक में है, इसे मत देखो. और वो फ़ोटो पे हाथ फेरने लगी, कांच के टुकड़ों का ना लिहाज ना करते हुए. मैं इसको तुरंत ही फिक्स करा दूँगी, मैं कल ही इसको करा दूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ. नो डोंट, माँ ज़ोर से बोली. My words are so harsh and abrupt that she looks at me in surprise. I don't care if it's broken. I don't want to see it here. I never want to see it again. और उसने बहुत ऊंचे स्वर में और बहुत एब्रप्टली कहा कि नहीं, मत ठीक कराना इसे. अगर ये टूट गया तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बल्कि मैं उसको देखना ही नहीं चाहती. मैं इसको कभी भी देखना नहीं चाहती. She seemed stunned, frightened. What's wrong with you? What's happened to you? और बेटी अचानक घबरा गई, शॉक में है वो. क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हो गई? नथिंग, आई एम ऑल राइट, बट आई डोंट वांट इट, लेट इट गो. बोली कुछ नहीं हुआ मुझे, माँ ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आई डोंट वांट इट, मुझे ये फ़ोटो नहीं चाहिए, जाने दो इसे. व्हाट आर यू सेइंग? बेटी शॉक में है. क्या कह रही हो तुम? लेट इट गो, आई रिपीट. वी आर स्पीकिंग इन sibilant strangled whispers, as if he is here, as if he can hear us. Can he hear us? Can he hear me? और वो बार बार ऐसे कह रही है, लेट इट गो. और धीमे धीमे बोल रहे हैं, स्ट्रैंगल्ड विस्पर्स, जैसे कोई गला घोट रहा हो और हम फुसफुसा रहे हों. ऐसी आवाज़ें उन दोनों की आपस में आ रही हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो डर के सहम के ऐसे बोल रही है कि कहीं वो सुन ना ले. क्या मरने के बाद भी कोई सुन सकता है? क्या वो सुन रहा है? ऐसा विचार मन में आ रहा है उनके. आई डोंट अंडरस्टैंड यू. लेट व्हाट गो? ही इज़ माई फादर. शी इज स्टिल क्राउचिंग ऑन द फ्लोर होल्डिंग द फोटोग्राफ इन हर 2 हैंड्स. और बेटी की समझ में नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या छोड़ दूँ, किसको जाने दूँ, ये पिता है मेरे. और वो फर्श पर झुकी उस दोनों हाथों में उस फोटो को लिए बैठी है. येस, योर फादर, बट व्हाट वॉज ही टू मी? हाँ, तुम्हारे पिता, लेकिन मेरे क्या थे वो? द डे ही डाइड आई लेट हिम गो लाइक दिस. जिस दिन वो मरे मैंने उन्हें जाने दिया, बिल्कुल ऐसे. नाउ आई मेक द जेस्चर आई हैड इमेजिन्ड, cupping my palms together and then separating them. She stares at my hands in fascination and there was nothing left, nothing. और हमने पहले भी जब कहानी हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि माँ हमेशा चाहती थी बेटी को समझाना
कि दोनों अंजलियां जोड़कर और उनको जाने देगी, खोल देगी, कहेगी देखो ऐसे जाने दो, अपने दुख को ऐसे जाने दो। ऐसे ही उसने फिर वही जेस्चर हाथ से किया, अपने दोनों हाथ जोड़े और अलग कर दिया और ये दिखाया कि मैंने ऐसे ही तुम्हारे पिता को जिस दिन वो मरे उन्हें जाने दिया और अब कुछ बाकी नहीं है। बट आई एम हिज डॉटर एंड योर्स, एम आई नथिंग, एम आई, शी इज़ पैंटिंग हर आइज हॉट एंड एंग्री। लेकिन अब उसका शौक जो है वो गुस्से में बदल गया है, पर मैं उसकी बेटी हूँ और तुम्हारी, क्या मैं कुछ नहीं, क्या मैं कुछ हूँ? What are you then? I ask her. You are just smoke and a bit of ash, like those cigarettes you smoke, like my married life. कहती तुम हो क्या? तुम भी वही धुआं और राख हो जो तुम सारा दिन सिगरेट में से निकाला करती हो, बिल्कुल मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की तरह। Pain lays its talons on her face, her eyes are anguished, but I force myself to go on. What have I to lose? Only the child's love, and I know this cannot destroy that. On the contrary, I have a feeling that she is with me now, giving me strength for the battle, urging me on, my beloved charioteer. और अब उसको अपनी बेटी की आंखों में दर्द दिख रहा है, her eyes are anguished, और बेटी की आंखें ऐसे हो रही हैं जैसे उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आई फोर्स माई सेल्फ टू गो। माँ हमेशा उसकी तकलीफ़ को सेंसिटिव है, उसकी तकलीफ़ को लेके, बेटी की तकलीफ़ उसने हमेशा देखी है, सही है, उसके साथ जिया है उस तकलीफ़ को। हालांकि बेटी ने ये ऐसा रेसिप्रोकेट कभी नहीं किया, लेकिन यहाँ माँ बेटी की आंखों में तकलीफ़ देखकर भी अपने आप को फोर्स करती है बोलते जाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। है क्या? और फिर वो ये सोचती है आज मेरे पास हारने को क्या है? वॉट हैव आई टू लूज? ओनली द चाइल्ड्स लव, सिर्फ उस बच्चे का प्यार ही तो। हो सकता है आती नाराज़ हो जाए, उसको ले जाए यहाँ से, मेरे पास ना रहने दे। एंड आई नो दिस कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट। लेकिन आज उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अब मैं जो भी करूँगी वो उस बच्ची का प्यार तो ख़त्म नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उसके ठीक विपरीत, आई हैव अ फीलिंग दैट शी इज़ विद मी नाउ, गिविंग मी स्ट्रेंथ फॉर द बैटल। उसे लग रहा है कि ये जो लड़ाई वो फ़िलहाल अब लड़ रही है अपने इमोशंस के साथ, अपनी बेटी के इमोशंस के साथ, उसकी ताकत उसे कहाँ से मिल रही है? उस बच्ची के प्रेम से ही मिल रही है। वही उसे ये ताकत दे रही है कि वो अपनी इस लड़ाई को लड़ सके। माई बिलवड चैरिटर। एंड नाउ वी कम टू रीड द टाइटल ऑफ द स्टोरी। क्यों इसको चैरिटर कहा गया, कौन चैरिटर है यहाँ पर, ये यहाँ पे एक ही दम से स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है। हु इज़ द बिलवड चैरिटर? वो बच्ची प्रीति। We will continue this in the next video.